ये चीज देख के मैं कोई ज्यादा शौक में भी नहीं गई, क्योंकि बहुत सारी जो वुमेन है उनको इस तरह से कर दिया जाता है कि अगर उनको मारपीट भी हो रही है तो उनको बाद में ये कि तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। डाउरी के लिए अगर डिमांड करेंगे, देखो इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनका ही गलती है। लेकिन अब में ये सब जो Hello everyone, welcome to another exciting episode of Legal Wiki. Today I'm delighted and thrilled to have Miss Meenu Padha ma'am on my channel. Miss Meenu Padha is an advocate and a women and child rights activist. She is actively working on women and child rights issues in Jammu and Kashmir for over 4 years. She is holding different positions at Jammu and Kashmir at Indian and international level as women and child rights activist. She is also a founder of Padha Law Associates, an external member of the internal committee of Sri Mata Vaishno Devi University. Also, an external member of the internal committee of Employees Provident Fund Organizations, Jammu and Kashmir, Ladakh. And recently, she has appointed as a national advisor of Embark Care Foundation India. With this, she is also a co-founder of Masti Ki Pathshala, an informal school for underprivileged children in Jammu. Besides all this, she is also an ambassador of International Child Abuse Prevention Program, My Body is My Body. Till date, she has taken more than 100 platforms across India on women and child rights issues. Her aim is to make women and children aware of their basic, constitutional, fundamental, and statutory rights. A very warm welcome to you, ma'am. In today's session, ma'am will discuss basic women rights and various platforms where women can raise their voices, and also will share her successful experience as women and child rights activist. थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इतनी प्यारा आपने ये इंट्रोडक्शन बोला है, मुझे नहीं लगता आई एम दैट मच कैपेबल, बट यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. It's my pleasure, actually. So, before we dive in, I would like to thank you for accepting my invitation. And I believe our discussion today will be highly beneficial for women and children in understanding their rights and also motivate young women lawyers to pursue law and fight for their rights. So, ma'am, with this, let's begin. Shall we, ma'am? ओके, यस प्लीज, यस। ठीक है। So, my very first question to you, मैम, आप बहुत ही ब्रीफ में हमें बताओ कि what are the women rights that they should be aware of and they should always remember that on their tips. So फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुरभि, मुझे अपने यहाँ लीगल वीकी चैनल में इनवाइट करने के लिए। आई थिंक इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है मुझे चाहिए होते हैं ताकि मैं अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सकूं, एंड मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विमेन राइट्स की अगर मैं बात करूं सुरभि, आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द लॉज अवेलेबल टू विमेन एंड चिल्ड्रन, राइट? सो नो डाउट हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, वी हैव सो मेनी लॉज, राइट? हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस है उसको डील करने के लिए लॉ है, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस को डील करने के लिए लॉ है, हमारे पास पॉक्सो है जो सेक्सुअल हरासमेंट बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है उसको डील करने के लिए लॉ है। सो देर आर सो मेनी लॉज। अगर मैं डिस्कस करूं वन बाय वन, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि वुमेन को पता होना चाहिए दैट इज अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्योंकि ये क्यों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आई एम फ्रॉम JNK, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेट्रो सिटीज, बट अगर JNK या फिर रूरल इंडिया जो पहाड़ी एरियाज है वहां की बात करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो विमेन है दे आर नॉट अवेयर। उनको उन्हीं के घर में जो है वो घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बट स्टिल उनको ये पता नहीं होता। क्योंकि आजकल एक चीज होती है कि फिजिकल अब्यूज बहुत महिलाओं को पता होता है कि हाँ, अगर कोई मारेगा तभी वो अब्यूज उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन इमोशनल अब्यूज, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस अगर एक्ट देखेंगे इसमें बहुत सारे अब्यूज को कवर किया हुआ है। they have covered the physical abuse, emotional abuse, financial abuse, mental abuse, sexual abuse. So women are not aware. अब मैं ही अपनी JNK की बात करूं तो हम यहाँ लीगल कैंप्स वगैरह लगाते हैं, कभी गांव एरिया में, पहाड़ी एरियाज में जाते हैं, तो विमेन जो है उनको ये तो पता होता है कि मारपीट होगी तो हम कोर्ट में जाएंगे या थाने में जाएंगे, वी विल फाइल अ कंप्लेंट। बट इमोशनली अगर आपको अब्यूज आपका हस्बैंड कर रहा है तो वो इस तरह से मैनिपुलेट आपको घर वाले करेंगे या इन लॉज करते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता चलने देते हैं कि एक्चुअल में उनके साथ अब्यूज हो रहा है।
लेट मी शेयर यू विद यू। एक मेरे साथ ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैंने एक लीगल कैंप लगाया था इन वन ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो है जम्मू कश्मीर का, वहां के एक विलेज में। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस पे ही था। तो महिलाएं जो है बाद में आफ्टर दिस कैंप मेरे पास आई और दे सेड कि मैम ये जो लड़की है इसको भी बहुत मारपीट होती है, तो ये लेकिन आपको बताई नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि आपके साथ भी मारपीट होती है तो क्या मतलब घर वाले मारते हैं तो आप कभी कंप्लेन नहीं की, कभी पुलिस थाने में नहीं गई? तो उसका रिप्लाई जो था दैट वाज कि मैम पति नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? पति तो मार रहा है ना, बाहर का कोई तो नहीं मार रहा है ना। तो ये चीज देख के मैं कोई ज्यादा शॉक में भी नहीं गई, क्योंकि बहुत सारी जो वुमेन है उनको इस तरह से कर दिया जाता है कि अगर उनको मारपीट भी हो रही है तो उनको बाद में ये कि तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। डाउरी के लिए अगर डिमांड करेंगे, देखो इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनका ही गलती है। लेकिन अब मैं ये सब जो बोल रही हूँ, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जाके छोटी छोटी बातों पे अपने मिस यूज करिए लॉ का और जाके कंप्लेन कर दीजिए, अपने घर तोड़ दीजिए। बट हाँ, एक लिमिट के बाहर अगर आपके साथ कोई इमोशनल, फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों में अगर आपकी बेइज्जती हो रही है, एक बार होती है, जैसे आपने थप्पड़ मूवी देखी थी, तो ये इस तरह की मूवीज भी जो है कहीं ना कहीं ये चीज वो कर रही है कि एक लिमिट तक जो है वो घर में चलिए वो चलता है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर कुछ हो रहा है तो प्लीज उसको जो है, वी हैव लॉज, लॉज आपके साथ है, आपको बस एक अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे अगर एक बात करें कि एक महिला है जो पढ़ी लिखी नहीं है और उसको बच्चों को भी चलाना है, उसको अपने आप को भी मैनेज करना है, और पति जो है वो अच्छा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है लेकिन फिर भी महिला को पैसे नहीं देता है, ना ही बच्चों का खर्चा करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब्यूज ही हो रहा है उस लेडी के साथ। अगर उसका पति उसको नहीं भी मारता है, मारपीट नहीं भी करता है, लेकिन उसको पैसे नहीं देता है और वो अनपढ़ है, तो ऐसे में वो अब्यूज ही है। तो शी मस्ट बी अवेयर कि अगर ऐसा कुछ होता है कि तो उसके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही उसको मजिस्ट्रेट के पास अगर वो कंप्लेन फाइल करेगी डीबी में, उसको एक परमानेंट मेंटेनेंस लग जाएगा। इट मे बी 2000, इट मे बी 3000, इट मे बी 20,000, दैट डिपेंड्स अपॉन द कि पति कितना कमाता है। लेकिन ये चीज होने के लिए वुमेन शुड बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स। सेकेंड लॉ जो है, अगर मैं सेकेंड लॉ की बात करूं, मेरे ख्याल में वो इम्पोर्टेंट जो है, सेक्सुअल हरासमेंट, जो पॉश एक्ट जिसे हम कहते हैं, वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसको डील करने के लिए जो लॉ है, पॉपुलरली नोन एज पॉश एक्ट। पॉश एक्ट में क्या होता है कि कोई भी जो वर्क प्लेस है जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग वर्क करते हैं, वहां पे ये मैंडेटरी है कि वहां पे एक इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए उस एम्प्लॉयर के द्वारा। मैं खुद पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में थी, अब माता वैष्णो देवी में हूँ और ईपीएफओ में हूँ, जैसे आपने इंट्रो में बताया। बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेस हैं सुरभि। अब अगेन मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्पेसिफिकली कोई शहर नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं अगर अपने ही यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करूँ, देर आर सो मेनी वर्क प्लेसेस जहाँ पे 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, बट आईसी का कंसेप्ट नहीं है। सपोज वहां पे अगर किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उस फीमेल को ये तक नहीं पता होता है कि मैं कंप्लेंट कहाँ फाइल करूँ। तो आईसी का प्रोविजन जो है वो एक मैंडेटरी है। तो देखेंगे आप, कानून है लेकिन कानून की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अवेयरनेस प्लस हमारे यहाँ पे कितने, बिल्कुल, अवेयरनेस प्लस इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप अवेयर होंगे तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सपोज अगर कोई लेडी है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, अगर उसको पता होगा कि उसके वर्क प्लेस जहाँ वो डेली काम काज करने जाती है वहां पे उसके साथ हरासमेंट होता है, तो उसको ये पता होगा कि आईसी होनी चाहिए। मेरा जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी बनती है कि आईसी कॉन्स्टिट्यूट करे। और ये जो आईसी होती है इसके पास सिविल कोर्ट के बराबर की पावर होती है, समन करने की, इंक्वायरी करने की, पूरे इंक्वायरी बैठी जाती है पॉश एक्ट में, जो सिविल कोर्ट की तरह पावर रखती है। तो इसमें ये जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएंगे। तो अगेन पॉश एक्ट की जो है वो अवेयरनेस उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप बाहर जाके, क्योंकि महिला जो बाहर जाके काम करती है, वर्क प्लेस में जाती है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रही है, उसको कानून की अवेयरनेस जो है, कानून की जो जानकारी है, वो आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और भी देर आर सो मेनी लॉज। अगर मैं बात करूं, वी हैव डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी में लेना देना ऐसे तो वर्जित है, ऐसे तो पूरी तरह बार्ड है कि इट इज इलीगल, राइट, एज पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। बट इफ यू सी द रियलिटी, हम खुशी से डाउरी देते हैं क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि बेटी को विदा कर रहे हैं, तो कुछ गिफ्ट्स अगर आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन अगर आप वो एक दहेज की तरह दे रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं प्रेशर है कि नहीं हमें देना पड़ेगा, नहीं तो कल को हमारी बेटी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो और वो हम देखते हैं बड़ी बड़ी शादियों में भी आप देखेंगे तो ये ओपनली होता है, फैमिली अच्छा खासा लड़की को वो करके भेजती है। तो आई थिंक एज पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एक एडिशनल चार्ज होता है। अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे डाउरी ली जा रही है या दी जा रही है, तो उनको जो है उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है पार्टी के। लेकिन हम देखेंगे कितने ही जो है डाउरी के केसेस हमारे पास मतलब आते हैं, डाउरी तो हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट नहीं होता है। देन देर आर पॉक्सो। पॉक्सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट विद चाइल्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। वो बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। लेकिन पॉक्सो में जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, अभी कोविड में हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि क्योंकि परपेट्रेटर जो क्रिमिनल होते हैं ना इन दोनों ऑफेंसेस में, वो विद इन फैमिली होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में भी ज्यादा से ज्यादा लोग वही लोग होते हैं जो आपको जानते हैं, आपके चाचा, ताया, इस तरह के लोग ज्यादातर केसेस में देखने को मिलते हैं, अंकल आपके। तो ऐसे में जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में भी फैमिली क्या होती है कि रिपोर्ट नहीं करती है कि नहीं अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो बाहर बात डिस्क्लोज हो जाएगी और फैमिली बदनाम हो जाएगी। तो इस चीज को दबा के रखते हैं। अवेयरनेस एक चीज है, अवेयर करना एक चीज है, दूसरी चीज जो है वो है उस अवेयरनेस के बेसिस पे, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके घर में ही ऐसा हो, लेकिन अगर आपके आसपास भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज रिपोर्ट इट। रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। वी हैव द जीरो एफआईआर का प्रोविजन। निर्भया के बाद जब हमने ये मास मूवमेंट देखी, निर्भया के इतना जो डरावना केस था, उसके बाद क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुई। पहले हमें ये होता था कि हमें ज्यूरिस्डिक्शन ढूंढनी पड़ती थी कि क्या जो क्राइम हुआ है वो विद इन ज्यूरिस्डिक्शन है उस पुलिस स्टेशन का। तो निर्भया के केस में देखने को मिला था कि वो तो बस चल रही थी, तो ऐसे में बस जो चलती हुई बस है वहां पे कौन सी ज्यूरिस्डिक्शन में वो फॉल कर रहा है वो क्राइम। तो वो तो एक कहते हैं ना कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। Yes, तो फिर उसके बाद जीरो एफआईआर का प्रोविजन जो है वो क्रिमिनल लॉ में ऐड किया गया कि आपको इस तरह के ऑफेंसेस के लिए ज्यूरिस्डिक्शन नहीं चेक करनी पड़ेगी। जहां पे आप हैं, जिस समय है, उसी वक्त जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पड़ रहा है आपको वहां पे जाके अपना क्राइम रिपोर्ट कर देना है। अब ये उस पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी बनेगा कि जो आपका क्राइम का ज्यूरिस्डिक्शन है वहां पे जाके वो फॉरवर्ड करे उस पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए। इट इज नॉट योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द ज्यूरिस्डिक्शन कि कौन सा पुलिस स्टेशन मेरे क्राइम की ज्यूरिस्डिक्शन में आ रहा है। इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर। सो वी हैव सो मेनी लॉज, मेरा इतना सारा ये अबॉर्शन के लिए वी हैव लॉज। अभी तो रिसेंटली ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने जो अनमैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी इतना पहले रिजिड था थोड़ा, तो अभी इतना ज्यादा उन्होंने कर दिया कि अनमैरिड कपल को भी अगर सेफ्टी के बेसिस पे अबॉर्शन करना है तो दे कैन डू दैट। एंड उसके बाद जो रेप सर्वाइवर्स हैं, माइनर जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, उनके लिए जो है अबॉर्शन जो है वो लिमिट वो कर दिया है, टाइम पीरियड उसका बढ़ा दिया है। So there are so many laws, there are so many rights available to women, to every person. But the problem is the lack of information and then the reporting of crime. yes, मैम। सो Yes. बेसिकली इवन आफ्टर हैविंग अवेयरनेस, तो पहले तो हमें उन्हें अवेयर करना होगा और उसके बाद वो नीडर होके इस चीज को रिपोर्ट करें। तो इवन नोइंग कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लड़कियां हो या फिर बच्चे हो, वो रिपोर्ट नहीं करना चाहते। और बच्चों को आजकल मैं ये भी देख रही हूँ, उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, थ्रू स्कूल्स, या फिर पेरेंट्स सिखा रहे हैं, या फिर हमें सीरीज की तरह सिखाया जा रहा है कि गुड टच पता होना चाहिए क्या और बैड टच पता होना चाहिए क्या है। क्योंकि रिलेटिव्स हो, जैसे आपने मेंशन किया, हमारे आसपास के लोग, जिन फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव जिनसे आप मिलते हो, वही है जो हमें हैरस कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो हैरस वही कर रहे हैं हमें। तो ये Exactly, पता होना exactly. जरूरी है। Yes, बिल्कुल सुरभि, आपने सही बोला। जो गुड टच बैड टच का है, एक्चुअली इसके रिगार्डिंग मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी जेएंडके हाई कोर्ट में फाइल किया है जेएंडके को लेके, क्योंकि yes, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, फिर मैं बोल दूं कि सेक्सुअल अब्यूज जो है वो कोविड के टाइम बढ़ गया था और ये पीआर मैंने तभी फाइल की थी
कोविड के टाइम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्योंकि घर में ही होता है, परपेट्रेटर जो आपका क्रिमिनल होता है वो कोई ना कोई फैमिली मेंबर भी होता है, तो तभी वो रेट जो डेटा रिलीज हुआ उसमें इतना ज्यादा एकदम बढ़ गया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो ऐसे में बच्चों को ये नहीं पता होता है कि गुड टच बैड टच क्या है। गुड टच उनके साथ कुछ होता भी है तो दे आर नॉट अवेयर कि कहाँ जाके हम रिपोर्ट करें या घर वालों को बताएं या नहीं बताएं। एक हाँ। प्रॉब्लम तो एजुकेशन सिस्टम में हमारी ये है कि बाकी सब सारे सब्जेक्ट्स को हम इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं, बट गुड टच बैड टच चाइल्ड अब्यूज को लेके हम कोई सेमिनार कई 5 महीने में एक बार करा देंगे, उसमें भी बच्चों को खुल के नहीं बताते। घर में ऐसी डिस्कशन नहीं होती है कि बेटा अगर तेरे साथ कोई इस तरह का टच करता है तुझे इनअप्रोप्रिएट वे से, तो तू मुझे खुल के आके बता सकता है या बता सकती है। तो घर वाले को बच्चों को ऐसे रिजल्ट आए तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन तो बड़ी रखते हैं बच्चों से कि नहीं अब तो सबको 95 से अबव ही चाहिए, इनफैक्ट 99 98%। लेकिन ये नहीं सोचते कि बच्चे को इतना तो घर में माहौल ऐसा दे कि अगर उसके साथ, और ऐसा नहीं है अगर डेटा देखें तो हर एक दूसरा बच्चा जो है कहीं ना कहीं उसके साथ चाइल्ड अब्यूज होता है, तो वो चीज वो घर में आके एटलीस्ट बता सके, क्योंकि अब बच्चा तो खुद रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को कोई ना कोई घर में ऐसा एक फैमिली मेंबर होना चाहिए जो उसको इतना कंफर्ट में रखे कि अगर बच्चे के साथ डेली एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं वो उसको क्लियरली बता सके मेरे से सुबह से लेके शाम तक ये सब हुआ है। और दूसरी चीज एजुकेशन सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को जैसे मैं बहुत जगह बोलती हूँ कि साइंस मैथ्स इंग्लिश हर जगह चीज को सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं, बट हम चाइल्ड अब्यूज को कभी ऐड नहीं करते उसमें कि बच्चों को पिक्चर या फिर स्किट के वे से सिखा सके। बहुत सारे स्कूल्स में आजकल हो रहा है इस चीज को, लेकिन फिर भी उसको एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन कि हाँ मतलब डेली नहीं तो 2 दिन बाद ये क्लास लेके बच्चों को बताना ही बताना है कि ऐसे में कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, किसको बताएं बताएं नहीं बताएं। ये सब चीजें आई थी हम यहाँ पे लैक भी कर रहे हैं। और इसका अवेयरनेस जो है मुझे लगता है वो घर से ही स्टार्ट होना चाहिए, कि गवर्नमेंट कितने भी स्कीम्स निकाल दे या फिर गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर दे, अगर घर में ये चीज नहीं सिखाया जा रहा है, फिर बच्चे जो है दूसरा अपने स्कूल में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर स्कूल में ये चीज नहीं सिखाया जा रहा है तो फिर इस अवेयरनेस का, या फिर जो गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स निकालती है वुमेन एम्पावरमेंट या फिर बच्चों के लिए, उसका कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि आपने सही बोला कि वही बात है कि अभी तक हम कितने कानून डिस्कस कर चुके हैं, 3 से 4 आई थिंक, लेकिन हाँ मैम। वो कानून 3 4 कानून अभी तक डिस्कस कर लिए, लेकिन उनकी अवेयरनेस ना होने की वजह से आज भी वो क्राइम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पॉश में चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट होता है, मिसयूज का जो पार्ट है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी भी जो अगर हम डेटा देखें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्टिल एग्जिस्ट करता है, बहुत ज्यादा लेवल पे करता है। डोमेस्टिक वायलेंस का डेटा देखें तो बहुत ज्यादा महिलाएं, और ये तो रिपोर्टेड है, कुछ महिलाएं रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। सही अभी बात। हमने दिल्ली में इतना हॉरिफिक इंसिडेंट देखा जहाँ पे देख मैम। हाँ। वो लड़की का जो है चाकू से मर्डर कर दिया गया। तो अब हम जो है उस चीज को देखने के लिए कि वी हैव क्रिमिनल सिस्टम जो इतना स्ट्रांग है, स्ट्रांग पनिशमेंट है, फिर भी लोगों को इतना ज्यादा जो है लीडर होके उसका अपने पे। मर्डर कर दिया और उसे फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये था कि वो सबसे ज्यादा जो दिखने के लोग सामने से निकल रहे हैं, एक हाँ। ह्यूमैनिटी लेवल का जो देखने को मिल रहा है कि कितने हम लोग इतने इनह्यूमन हो गए कि हम लोगों के सामने कोई इस तरह से कर रहा है। एक साइड आप लोग एनिमल राइट्स की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, और जब ये तस्वीर देखने को मिलती है तो हर चीज से विश्वास उठ जाता है। तो ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। नॉट यू शुड नॉट बी अ एक्टिविस्ट और अ सोशल वर्कर और अ लॉयर और एनी, यू फर्स्ट, आप सबसे पहले एक ह्यूमन है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, यू आर अ ह्यूमन। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसी सामने एक्टिविटी हो रही है, वाई यू आर आप इतने सारे लोग हैं, या तो वो एक अकेला हो और वो डरा हो कि मुझे भी कहीं ना कहीं हार्म कर देगा, देयर आर सो मेनी पीपल जो साथ में निकल रहे हैं। तो वो लड़की को इतने, मतलब वो देख के ही वीडियो में आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप इस तरह का क्राइम वो कर रहे हैं, हो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी महिला जो घर की आपकी फीमेल है वो तो चलो सेफ बैठी है ना घर पे, दे आर नॉट सेफ। अगर आपके सामने कोई महिला को इस तरह से कर रहा है तो आपके घर की जो फीमेल है दे आर ऑल्सो नॉट सेफ। तो उस चीज को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। So, ma'am, moving on to my next question.
हमने इतने सारे, इतने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आउट ऑफ ऑल दिस व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लीगल इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन? देखिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन में कॉमन लीगल इशू सबसे ज्यादा तो यही आता है मेरे पास, जो मतलब जितना मैंने देखने को मिला है। एक तो सबसे ज्यादा बच्चों में रहता है कि अब्यूज, जो चाइल्ड अब्यूज जो है, इस तरह के केसेस बड़े आते हैं। उसके बाद बीइंग आईसी मेंबर ऑफ फ्यू कमिटीज, इंटरनल कमिटी की मेंबर होने के लिए मेरे पास जो चाइल्ड ये सेक्सुअल हरासमेंट के मैटर आते हैं, रेप सर्वाइवर होते हैं कुछ, अ, और उनको जो एक मैं केस डिस्कस करना चाहूंगी इसी क्वेश्चन के लेके यस आपको। मैम। हाँ। हाँ, मेरे पास एक केस आया, तो दैट गर्ल वाज रेप्ड बाय हर ओन ब्रदर इन लॉ। उसके खुद के जो भाई है, बिकॉज वेमेन जो थी वो शी वाज मैरिड व्हेन शी वाज ओनली 15। क्योंकि वो गांव में हो जाता है, गांव में कर देते हैं कि लड़की जल्दी सेटल हो जाएगी, ऑल्दो इट इज ऑल्सो क्राइम। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में इट इज ऑल्सो क्राइम। बट अब 15 साल में उसकी शादी हो गई है। उसके बाद जो है, इन द एज ऑफ 17 शी वॉज रेप्ड बाय हर ओन ब्रदर इन लॉ। जब उसने बोला फैमिली में, तो एवरी वन वॉज अवेयर, उसके इन लॉज अवेयर थे, एवरी वन वॉज अवेयर। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम जब देखने को मिलती है, जो में सबसे ज्यादा लीगल इश्यूज फेस होते हैं, when she approached to the police station for registering an FIR against the accused person, जो वो उसका ब्रदर इन लॉ था, पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR। SHO, देन SSP, एवरीवन। एंड अनफॉर्चुनेटली पुलिस रिपोर्ट नहीं कर रही, FIR रजिस्टर नहीं कर रही। सबसे ज्यादा पार्ट जो है, आपके साथ क्राइम कमिट हो गया है। पहले तो आपके साथ क्राइम नहीं कमिट होना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ अब क्राइम कमिट हो गया है, तो अगर कोई इंसान, एक महिला जो है इतना, अगेन मैं वही बोलूंगी कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिस यूज ऑफ लॉ, उनको अलग से सजा मिलनी चाहिए जो मिस यूज कर रही हैं, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते। 100 में से अगर 10 लोग मिस यूज करें, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर एक महिला जो है वो मिस यूज कर रही है कानून का। एक अनपढ़ देहाती लड़की जिसके साथ रेप हुआ है और जिसको घर से निकाल दिया गया है, ना उसके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ना उसके पीछे के घर वाले, ससुराल वाले उन्होंने निकाल दिया, उसके पास कोई जगह नहीं है। वो पुलिस के पास आती है बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के कि मेरी FIR रजिस्टर्ड कर ली जाए। लेकिन पुलिस, इट्स बीन आई थिंक मोर देन 5 ईयर, पुलिस हैज नॉट रजिस्टर्ड द FIR। और जब वो मेरे पास केस आया, नाउ दैट केस इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अनफॉर्चुनेटली देखने को यही मिला कि पुलिस की तरफ से जब इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, ज्यादातर क्या होता है कि पुलिस के पास पहले तो लोग आते नहीं है रिपोर्ट करने के लिए, जब आएंगे भी तो उनको एक अलग ही एक्सप्लॉइटेशन लेवल जो है वहां पे सहना पड़ता है। पहले तो कई जगह जो है फीमेल पुलिस ऑफिसर या फिर फीमेल कोई कांस्टेबल नहीं वहां पे होगी, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहां पे होगा, अगर वहां पे होता भी है तो फिर भी वो रजिस्टर नहीं करते हैं। फिर लोग जो है कोर्ट कचहरी के नाम से वैसे ही थोड़ा सा उनके माइंडसेट होता है कि कौन कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाएगा। तो जब पुलिस भी कोऑपरेट नहीं करती है, फिर जब कोर्ट कचहरी के बारे में दिमाग में आता है कि भाई यहाँ से भी नहीं हो लग रहा है, तो एक खुद एक दिमाग में हम कॉमन सेंस लगाएं कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको पुलिस भी अगेन एंड अगेन उसके ट्राई करने पे कुछ नहीं उसको रिलीफ मिल रहा है, वहां पे भी वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो कोर्ट कचहरी में कभी भी हिम्मत नहीं करेगा, वो अपनी जस्टिस के लिए कभी भी नहीं लड़ेगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो आई थिंक कानून है, तो एक कहीं ना कहीं बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, वी हैव अ ड्यूटी कि अगर कुछ ना कुछ हुआ है, तो जो आपकी ड्यूटीज आपको अलॉट हुई है वो आप करें। देयर आर सो मेनी, जैसे हमारे पास ललिता कुमारी का जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन FIR अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। रेप इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट्स अ सीरियस ऑफेंस, राइट? एंड यू आर नॉट रजिस्टरिंग एन FIR। तो आई थिंक ये चीजें कोर्ट की तरफ से भी लोगों को, बीइंग लॉयर, लोगों को इनिशिएट करनी चाहिए कि अगर कानून है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल में तो ज्यादा मैम, फेस करने को अगर मिलती है। पुलिस अगर रजिस्टर ना करे तो इसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो एज पर सीआरपीसी आपके पास सबसे पहले तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां जाना है। वहां पे रजिस्टर नहीं करेंगे, देन यू हैव टू अप्रोच टू योर एसएसपी, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर होता है। वहां पे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होता है, ये में भी एसपी, कमिश्नर, जो वो होता है, उसके पास आपको अप्रोच करना है अंडर 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी। अगर वहां भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, देन यू कैन अप्रोच टू योर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेट्रो सिटीज के केस में फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो भी आपका मेट्रो ये सॉरी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वहां पे आपको एप्लीकेशन देनी है टू गिव डायरेक्शन टू द पुलिस कंसर्न टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। लेकिन अब ये क्योंकि हम कानून जानते हैं तो हम लोग ये चीज डिस्कस कर पा रहे हैं। एक आम इंसान को नहीं पता होता है कि उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना है, एसएचओ के बाद, या फिर एसएसपी के पास जाना है, मजिस्ट्रेट के पास। लीगल एड का प्रोविजन है, लीगल हेल्प है, हमें फ्री लीगल एड का प्रोविजन है, विमेन को है, डिसेबल्ड पर्सन को है, बुजुर्गों को है। बट दे आर नॉट अवेयर, और उनको लगता है कि हम कोर्ट में वकीलों की फीस पे नहीं कर पाएंगे। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास अप्रोच तो करें। हर एक डिस्ट्रिक्ट सेल में, वहां पे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस होता है, वहां पे आपको फ्री वकील मुहैया करा सकते हैं। लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अवेयरनेस तो हम ही जैसे लोगों को फैलानी है। लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी तब वो उस चीज का फायदा उठा पाएंगे। मैम, आपको बेटी क्या बचाओ लगता है बेटी कि पढ़ाओ। हम लोग को ये कैसे अवेयरनेस फैलाना चाहिए, उनके तक ये नॉलेज कैसे जाएगी? देखिए सुरभि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, हर एक बच्चे को पता है। उसकी इतनी मास लेवल पे अवेयरनेस, मतलब पूरा पूरा इंडिया जो है, आप रेडियो में सुन सकते हैं उसको, आप टीवी में देख सकते हो, आप सोशल मीडिया में देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, न्यूज चैनल्स कवर करते हैं, लोग बात कर रहे हैं, नुक्कड़ में आप देखेंगे कहीं गांव में बातें हो रही है बेटी पढ़ाओ। उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ऑफिसर्स हैं हमारे, जो आईएएस ऑफिसर, जो हमारे डीसी होते हैं, तहसीलदार लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस लेवल की मास मूवमेंट चाहिए। इस लेवल की मास अवेयरनेस जब चलेगी कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सॉरी जो स्कीम है, इसका ये एक फायदा भी इतना हुआ कि कहीं ना कहीं जो रेशो है उसमें सुधार हुआ है। अब फीमेल फिटिसाइड के इतने मैटर नहीं है हरियाणा राजस्थान जैसी स्टेट्स में, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा कॉमन था कि लड़की का पता होने पे ही वो पेट में ही उसका वो कर देते थे। लेकिन Yes. अब जो है इस पे सख्त कानून बना है और अवेयरनेस फैल रही है कि नहीं बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सरकार जो है वो बेटी को पढ़ाने के लिए पूरे इनिशिएटिव लिए है उन्होंने। राइट टू एजुकेशन है हमारे पास, स्कूल में आपको मिड डे मील से लेके आपको स्कूल में पढ़ाई, आपको किताबें, बैग, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन बात वही है, इस लेवल पे अगर कुछ अचीव करना है, इस लेवल पे हर एक स्कीम जो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देश में चेंज ला सकती है, हमें अपने अपने लेवल पे इस लेवल की अवेयरनेस फैलानी होगी। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन। कि अगर आपको किसी स्कीम का पता है जो आपको लगता है कि किसी को बेनिफिट कर सकती है, सरकार ने बनाई है, तो प्लीज उसको स्प्रेड करें आगे। इट मे बी थ्रू योर सोशल मीडिया, इट में भी थ्रू आप बात करके कर दीजिए। आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया का हमने पावर जो है कोविड में देखा, हमने इस लेवल पे सोशल मीडिया में देखा कि उस टाइम लोग एक दूसरे को अवेयर कर रहे थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प के लिए खड़े हुए। तो एक्चुअल में अगर कहीं मैंने सोशल मीडिया का कभी हमने पावर देखा तो दैट वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम। Yes, ma'am. तो उस टाइम जो हमने जिस तरह से एक दूसरे का साथ दिया, आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आज भी है एक दूसरे के लिए। कि जिस जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 10 लोगों के साथ बैठी हूँ एंड आई नो वन एनी इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय माई ओन स्टेट गवर्नमेंट या यूटी लेवल पे, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई शुड स्प्रेड इट टू द पीपल। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन, देन ओनली वी कैन अचीव दैट थिंग कि हमारे जो सिचुएशंस हैं वो ठीक हो जाएंगी और बेहतर हो रही है, नो डाउट। हम अपनी ही स्टेट्स में, अपने ही गांव शहरों में देख रहे हैं कि वही तहसीलदार जो आज से कुछ सालों पहले इतने एक्टिव नहीं होते थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आज दे आर रेडी टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ है। सो मैम, मेरे पास अब आपके लिए दो क्वेश्चन है। पहला कि मैम, जब आप ये रेप केसेस से डील करते हो और ये हीनस क्राइम से डील करते हो, आई एम श्योर ये इजी नहीं होता होगा आपके लिए। सो हैव यू फेस्ड एनी हर्डल्स और एनी चैलेंजेस while fighting for this women rights और child rights? और क्या ये प्रोसेस फाइट आपके
कि इजी होता है? इजी तो नहीं होता है बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, एंड ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली से आना, ये सारी चीजें। और सबसे पहले लिटिगेशन में फीमेल को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अब मेरा तो अभी कुछ भी नहीं है, मतलब आई डोंट हैव दैट मच प्रैक्टिस। 4 साल का भी 4 ईयर मेरा प्रैक्टिस करा जा रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के लिए, उसके बाद फीमेल लिटिगेशन में होने के लिए, आप कोई भी केस विमेन राइट्स पे और चाइल्ड राइट्स पे तो नहीं, मैं कोई भी चीज अगर आप करते हो लिटिगेशन आपके लिए, वैसे तो हर प्रोफेशन में मेरे से बहुत सारे लोग ये बोलते भी है कि लॉयर अपने ही वो करते रहते हैं कि हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। ये हर जगह होता है, नो डाउट नेपोटिज्म हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी प्रोफेशन में मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली स्ट्रगल ज्यादा है फर्स्ट जनरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन में पेशेंस बहुत चाहिए आपको। आप 4-5 साल फाइल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, केसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। इफ यू आर ऑफ कोर्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी। इस एज में पेरेंट्स से मांगने में भी दिक्कत होती है। तो वो एक पीरियड आई थिंक वो होता है जब आप खुद लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हो, और उसके बाद जब आप केसेस आपके पास आने लगते हैं, जब आपको थोड़ा सा आप अपने बेसिस पे काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तब आपको लोग ज्यादा नोटिस करते हैं। नो डाउट बहुत पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं या फिर आपको अप्रिशिएट करते हैं, बट बहुत अजीब लोग भी मिलते हैं। अब जो कुछ आपको मतलब हेल्प तो नहीं कर सकते या कुछ सपोर्ट तो नहीं कर सकते, चुप भी नहीं रह सकते, बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना जिसमें आपका जो आपका काम है वो सफर करे। इट में भी कोई भी वो यूज करते हैं, कुछ भी, मतलब आपको हरास करने की कोशिश करेंगे या फिर आपके बारे में कुछ ऐसे वो करेंगे। इस तरह की चीजें जो है, मुझे लगता है नॉट ओनली कि आप रेप केसेस लेते हो, ऑफ कोर्स वो एक क्रिमिनल साइड में क्या रहता है कि जब आप एक क्रिमिनल केस को डील कर रहे होते हो तो आपको एक अलग ही लेवल का थ्रेट भी होता है। और आपको अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई इस तरह से कोई वो हुआ है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली मैंने बहुत कुछ चीजें फेस कर रही हूँ, एंड आई थिंक करते रहूंगी। क्योंकि जब आप कोई इनिशिएटिव चला रहे होते हो, आप सपोज आप अगर आप किसी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में ही हो, एंड आप किसी केस की इंक्वायरी कर रहे हो, एंड जो आपके ऑपोजिट है द अक्यूज्ड पर्सन इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, राइट? इन Yes. दैट केस बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स होती है चीजों में कि आपको इनडायरेक्टली थ्रेट भी किया जाता है या फिर कुछ ऐसा करा जाता है जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मैं ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ या पीछे हट जाऊं। लेकिन वहां पे आपको देखने की जरूरत है कि अगर यही सोचना था तो आई थिंक लॉ इज नॉट फॉर यू। अगर आपने लॉ चूज किया है, आपने एक अपना रास्ता चूज किया है फॉर योर एक्टिविज्म, कि आपने एक्टिविज्म भी करना है, वकालत भी करनी है, और लोगों के राइट्स के लिए भी आपने काम करना है, तो आपको इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में आगे भी फेस करनी होगी पूरी लाइफ जब तक आप करते रहोगे। तो प्लीज बी रेडी। उसमें फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। फिर आपका जो अभी तक किया है वो अभी तक करने का कोई मतलब वो नहीं है, पॉइंट नहीं है। सो मैम, मूविंग ऑन टू माय सेकंड क्वेश्चन। सो आपने अभी इतने सारे लॉज के बारे में बात किया, ठीक है, और इतने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी निकाल रही है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। सो डू यू थिंक कि जो वुमेन है दे आर मिसयूजिंग दिस लॉज? क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में डिस्कशन चल रहा था, जहां पे मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बोला कि लड़कियों को इतना बेनिफिट मिल रहा है, इतना रिजर्वेशन मिल रहा है कि देयर विल बी अ टाइम जहां पर हमें लड़ाई करना होगा, हमें प्रोटेस्ट करना होगा अपने राइट्स के लिए और रिजर्वेशन के लिए। सो वहीं पे मेरी एक और फ्रेंड बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि तुम लोग ने कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया ही नहीं, हम लोग ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया इसीलिए वी आर गेटिंग ऑल दिस राइट्स। So then my friend says like कि नहीं, even we have discriminations and atrocities but still we are not being taken care of. So मैम आपको क्या लगता है, क्या लड़कियां सही में ये लॉज जो बेनिफिट्स उन्हें मिल रहा है उसका मिसयूज कर रही हैं? देखिए टू बी ऑनेस्ट, फिर भी लॉ कोई भी मिसयूज हो सकता है और कोई भी पर्सन कर सकता है। लड़कियां स्पेशली कर रही हैं या फिर अगर कोई एससी है, और एससी आपको पता होगा एससी एसटी के लिए जो एट्रोसिटीज एक्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि छोटी सी बात पे सिर्फ आप उनको अगर कोई नेम लेके बोलते हो
आप कोई उनके एससी कम्युनिटी का कोई वो करते हो तो वो भी आप पे पर्चा लग सकता है, मतलब इजीली एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है। यस मैम, लॉ यस मैम। कोई भी मिसयूज हो सकता है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल करिए। बट हाँ, आजकल जो है वो ये चीजें ट्रेंड में कर रही है कि फीमेल जो है मिसयूज कर रही है। मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि फीमेल मिसयूज नहीं करती हैं। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं जहाँ पे मैं मेल को रिप्रेजेंट करती हूँ, और फीमेल ने एक्चुअली में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जो मुझे खुद शॉकिंग लगता है कि मतलब कोई इस तरह से कैसे गिर सकता है कि आप कानून अगर आपको मिले हैं तो आप उन महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो जिनके लिए एक्चुअल में ये कानून बने हैं। अब एक महिला जिसके साथ एक्चुअल में क्राइम हुआ है और एक महिला जो फेक रेप केस डाल रही है, ये तो उस महिला के साथ कितना बड़ा गलत हो रहा है जो इसके लिए एक्चुअल में क्राइम बना था, जिसके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन रेप में डाली हुई है। तो ये बात है कि क्राइम कोई भी मिसयूज हो सकता है। आप कोई भी क्राइम को मिसयूज कर रहे हैं। अब मैरिटल रेप पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि मैरिटल रेप को रेप कंसीडर करना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स इट कैन बी मिसयूज्ड, बट क्या बाकी क्राइम मिसयूज नहीं हो सकते? अब अगर कोई आप छेड़खानी का भी कोई आप पे केस डाल देता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्स होता है, लेकिन बाद में एक लड़की जो है जस्ट बिकॉज कि उसको कोई उसकी मर्जी का चीज नहीं मिल रही होती है, वो ब्लैकमेलिंग के लिए वो और उसकी फैमिली रेप का पर्चा लगा देते हैं, रेप का एफआईआर रजिस्टर करा देते हैं। तो ऐसे में आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन को देखना पड़ेगा कि हम कैसे वो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन, अगर सपोज एक फीमेल पाई जाती है कि वो असल में मिसयूज कर रही है कानून का, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोविजन होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट हैवी फाइन इम्पोज हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इसके लिए हम ये डिनाई नहीं करेंगे कि क्राइम को क्राइम ही नहीं कंसिडर किया जाए। मिसयूज करती हैं। अब जैसे जेएंडके हाई कोर्ट का ही मैं जेएंडके कोर्ट का एक बात करना चाहती हूँ। वहां पे एक फीमेल ने फ्रिवलेस कंप्लेंट फाइल की, और उस पे जेएंडके हाई कोर्ट ने लैक्स में फाइन इम्पोज किया उस पे, क्योंकि बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इट वाज अ फ्रिवलेस कंप्लेंट, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ आपने कंप्लेंट फाइल की थी। लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये काम इन्वेस्टिगेशन का है, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। और हमारे जस्टिस सिस्टम में एक तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चीजें हो जानी चाहिए, जिससे थोड़ा कि जैसे अगर मिसयूज भी होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक लड़की है वो 16 ईयर है, और 16 साल की लड़की और लड़का जो 16-17 साल में है, उनको कंप्लीटली पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब पॉक्सो है, पॉक्सो में अगर आप 18 से नीचे हो और आपने सेक्स किया है, यहाँ पे कंसेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दैट इज कंसिडर एज रेप, राइट? एक लड़की है, उसकी फैमिली ब्लैक में, और ये चीजें होती हैं एक्चुअल में कोर्ट में, अगर हम देखें तो ये चीजें हम वकीलों को देखने को मिलती हैं। वहां पे क्या होता है कि 16-17 साल की लड़की अपनी फैमिली के साथ मिलके उस लड़के पे फ्रिवलेस कंप्लेंट डाल देती कि शी हैज बीन रेप्ड बाय दिस गाय। वो लड़का जो है इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा, और अब उसको बेल भी इजीली नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसका पॉक्सो लग गया है। पॉक्सो इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है कि एक बार आपको पॉक्सो लग गया तो आपको जज कभी बेल इजीली नहीं ग्रांट करेगा। ऐसे में हमें अपने सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार की जरूरत है। कि जैसे हम 498A प्रोविजन है जिसमें क्रुएलिटी का प्रोविजन है कि एक लड़की जो है अगर कहती है कि उसके घर वाले उसके साथ क्रुएलिटी कर रहे हैं, इन लॉज, तो पहले ये था कि आपको इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया जाता था, इन लॉज को, हस्बैंड को, और जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन अब जब पता चला कि फीमेल 498A का इस तरह से मिसयूज करने लगी कि फटाफट इन लॉज को अंदर डाला देती है, हस्बैंड को अंदर डला देती है, देन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द साइटेशन ऑफ द केस, टाइटल ऑफ द केस एज वेल, लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया कि पहले इसमें इन्वेस्टिगेट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल जाती है कि वो कहती है कि उसकी क्रुएलिटी हुई है उसके इन लॉज के द्वारा, तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उनको पहले ये पता किया जाएगा कि क्या एक्चुअल में ये लड़की जो बोल रही है वो सच है या झूठ। अगर वो सच होती है तब उन पे कार्रवाई होगी, नहीं तो कार्रवाई भी नहीं होगी। अब इसी तरह का मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पॉक्सो में भी देखना चाहिए, रेप के केसेस में भी देखना चाहिए। 354 में तो चलिए आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन जब आप पे रेप के चार्जेस एक लड़के पे पड़ते हैं और वो कंसेंशुअल सेक्स होता है, तो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में एक टाइम होना चाहिए कि बेल, क्योंकि एक्यूज के भी राइट्स, अभी वो गिल्टी प्लीड प्रूफ नहीं हुआ है तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाए, थोड़ा सा इतने हार्श नहीं हम रहे।
कि कानून इतना महिला को लेके स्ट्रांग हो जाए कि वो एक सिर्फ टेस्टिमनी के बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट देती है कि शी हैज बीन रेप्ड और अंदर और सालों के लिए अंदर, उसको बेल भी नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली ये चीज मैं अपने कुछ केसेस के एग्जांपल से दे रही हूँ। देयर वाज अ गाय, एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, आपस में दोनों का ठीक चल रहा था, बट देन फैमिली पिक्चर में आ गई एंड फैमिली ने कहा दूसरी कम्युनिटी का है एंड दे स्टार्टिंग की अपना प्रॉपर्टी जो है, पर्टिकुलर हिस्सा हमारी लड़की के नाम कर दो, इमीडिएटली शादी कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। लड़के की फैमिली ने नहीं माना, देन उन्होंने एफआईआर लगा दी उस पर और पॉक्सो लगा उस पर एंड ही स्टिल इन जेल। इट वॉज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, मतलब आपस में पूरा कंसेंट था सब कुछ। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हमारे जस्टिस सिस्टम में कहीं लूप होल्स है, उनको देखने की जरूरत है। ना कि ये कि कोई क्राइम, अगर क्राइम है वो कोई मिसयूज कर रहा है, यूज कर रहा है, उसको इन्वेस्टिगेशन में ढूंढने की जरूरत है। लेकिन इस चीज में कि नहीं फीमेल मिसयूज कर रही है या मेल मिसयूज कर रहा है, क्राइम कोई भी मिसयूज कर सकता है। जी सही बात है मैम। Ma'am, in your opinion, what specific laws or policies need improvement to protect the rights of women and children? मतलब ऐसा कोई urgent issue जिस पे हमें तुरंत काम करना चाहिए to protect their rights? मेरे ख्याल में इनके वुमेन के राइट्स जो हैं और चिल्ड्रन के राइट्स जो हैं वो अवेयरनेस के थ्रू प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। क्योंकि जब एक इंसान अवेयर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अवेयर होंगी, तो मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट कराने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकती हूँ। अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। गांव गांव लास्ट जो कॉर्नर्स हैं गांव के, विलेजेस के, ये ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत लेवल पे स्टार्ट करते हैं हम, एक विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे जो सरपंच होता है उसका एक वो होना चाहिए, गाइडलाइंस निकलनी चाहिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे से यहाँ जेएंडके के जो एक एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा। एंड क्योंकि मैं इन चीजों पे एक्टिव रहती हूँ, वुमेन और चाइल्ड राइट्स इश्यूज पे, तो उन्होंने बोला मीनू जी आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे इसमें कि जो मैरिजेस को स्टॉप करने के लिए हम कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो गाइडलाइन निकाल रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पे, कुछ हम रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने वही पीआईएल का जो डिस्कस किया उसमें मैंने कुछ मैंने और मेरे कुछ लीगल इंटर्न्स हैं, हमने मिलकर कुछ गाइडलाइंस रिकमेंड किए जेएंडके हाई कोर्ट को कि ये गाइडलाइंस अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में सुधार हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कम किया जा सकता है। तो इस तरह की हम, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड राइट मिनिस्ट्री जो है और जो कमीशन है हमारे, वुमेन कमीशन है, चाइल्ड राइट कमीशन है, इनको एक्टिव वो कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस इम्पोज करा सकते हैं, रिकमेंडेशन अपनी दे सकते हैं कि किस तरह से आपको कुछ रिकमेंडेशन आपके दिमाग में लगती है। तो इतना हमें फ्रीडम होना चाहिए कि हम जो अपने कंसर्न, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, कंसर्न हमारी सरपंच है, पंचायत है, वो हमें सुने और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आगे कदम उठा सकते हैं। क्योंकि ग्रास रूट लेवल शुरुआत गांव से होती है। एक गांव जो है वहां पे सरपंच हेड होता है। सरपंच जो है, अगर वो सरपंच का ड्यूटी वहां पे उस गांव के एरिया में उसका ये ड्यूटी है कि अपने गांव में चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, ये उसको चेक रखना है, पंचिस को चेक रखना है, तहसीलदार को तहसील लेवल पे चेक रखना है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का कोई केस आ रहा है, किस तरह से डाउरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम वो नोटिस निकाले कि दो स्टूडेंट्स, दो पर्सन कुछ रिकमेंडेशन हमें वो कर सकते हैं कि जिससे हम ये चीज कर्व कर सके। तो आई थिंक इस तरह से सोसाइटी लोगों के साथ मिल के गवर्नमेंट जो है वो बहुत लेवल पे जो है इस तरह की चीजों को हम इम्प्लीमेंट कराने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, नो डाउट। थैंक यू मैम। और बस हमारे मेरी कुछ और क्वेश्चंस, लाइक हाउ डू यू पर्सनली वुड लाइक टू डिफाइन फेमिनिज्म एंड डज इट इन्फ्लुएंस इन योर वर्क? फेमिनिज्म का मतलब आजकल तो ऐसे है कि फेमिनिज्म का शब्द ही सुन के ना ऐसा लगता है क्राइम। जब मैं अपने जो कलीग हैं उन लोगों के साथ हम फेमिनिज्म पे डिस्कस करते हैं तो वो मजाक सा एक जोक की तरह लेते हैं फेमिनिज्म। लेकिन फेमिनिज्म से हमारा ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि विमेन को सुपीरियर शो कर दो, वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी। अगर आप जैसे इक्वल एज को एक लॉ से समझते हैं, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर संविधान ने हमें इक्वालिटी का प्रोविजन दिया है तो हम उसको किस तरह से वो कर सकते हैं। अगर एक महिला और एक जो पुरुष है वो दोनों बराबरी का काम करें कंपनी में, उनको क्यों वेजेस इक्वल नहीं मिलने चाहिए?
फेमिनिज्म से हमारा ये मतलब है कि उस चीज को इक्वालिटी बढ़ती है। हम ये नहीं कह रहे, हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। देखिए बहुत एक इंसान, आदमी और औरत को बहुत अलग अलग बनाया है नेचर में, वो बिल्कुल अलग चीज है। उनसे हम ये नहीं करें कि आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि जो राइट्स हमें मिले हैं, जहाँ पे हम बराबरी, जिन चीजों में महिलाएं, कई चीजों में महिलाएं ऊपर हैं, कई में पुरुष ऊपर है, हम उन चीजों को इम्बैलेंस नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग कि अगर एक महिला एक कंपनी में इक्वल कंट्रीब्यूट करी, उसकी ड्यूटी से सेम है, उसकी ऑब्लिगेशन सेम है, और एक पुरुष की सेम है, तो एक महिला को वेजेस कम क्यों मिले? अब जैसे एक, अब ये बॉलीवुड में भी सुनने को आता है कि एक फीमेल एक्ट्रेस को उसके मेल को एक्टर से कम पैसे मिलते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक सुना था। अगर वो एक्टिंग बराबर की कर रही है तो इस तरह का, अगर हम, ये लोग इतने एम्पावर्ड हैं, अब यहाँ पे ही देख लीजिए कि देखिए सेम, जहाँ पे इक्वालिटी है, जहाँ पे सेमनेस है, वहां पे मेरे ख्याल में आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए कि एक, अगर महिला है वो पायलट भी है, वो लॉयर है, वो सब जगह अपने आप को परफॉर्म कर रही है, तो उस चीज में आप जो है वो ये कहेंगे कि नहीं, फेमिनिज्म क्यों डाल रहे हो, वुमेन कार्ड क्यों खेल रहे हो, बहुत अजीब अजीब से शब्द यूज किए जाते हैं, वुमेन कार्ड खेलते हैं ये वो। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है। अगेन उसका नेगेटिव साइड नहीं देखेंगे, जहाँ पे एक सीडो फेमिनिज्म की मतलब वो एक अलग काफी चीज आ जाती नेगेटिव है। सेंस में लेते हैं लोग अगर फेमिनिज्म की बात किया जाए तो। पूरा एक वर्ड को ही फेमिनिज्म शब्द बोला ही जाता है तो वो उसको जोक की तरह कहेंगे, हाँ हाँ तुम्हारा अपना वुमेन कार्ड वो शुरू हो गया, फीमेल का अपना वो रहता है, इनको हर चीज में सुपीरियर बनना है। देखिए हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग कि जहाँ पे इक्वालिटी मिलनी चाहिए वहां पे क्यों ना मिले। क्योंकि कंट्रीब्यूशन या तो हो कि आप जैसे यहाँ पे ये चैनल चला रही हैं, आप अपने बेसिस पे, एक महिला एंटरप्रेन्योर है तो वो अपने बेसिस पे कर रही है, तो उसको क्यों लोअर आप कंसीडर करना चाहते हैं? उसको लोअर क्यों? क्योंकि वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी में। आधी परसेंट जनता जो है वो महिला है और आधा कंट्रीब्यूट अगर कर रही है, तो आप उसको उसकी कंट्रीब्यूशन से डिनाई नहीं कर सकते। So my last question, any advice from you to law students, sir? The budding law students, sir? बडिंग लॉ स्टूडेंट्स को मेरा यही एडवाइस है कि आप सबसे पहले तो जो अपना पढ़ाई है वो आराम से करें, उसके साथ इंटर्नशिप जरूर करें। इंटर्नशिप्स प्रेफरेबली, क्योंकि अभी तो वो कोविड वाला सिचुएशन नहीं है, तो फिजिकल इंटर्नशिप करें। जिस टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, कईयों को एनवायरनमेंट पे होता है, कईयों को वुमेन राइट्स पे होता है। जैसे मेरे ही कितने सारे लीगल इंटर्न्स हैं, तो अलॉन्ग विद मेरे साथ तो इंटर्नशिप किया ही, लेकिन कईयों को वुमेन राइट्स पे था, ह्यूमन राइट्स पे था, तो वो ह्यूमन राइट कमीशन को अप्रोच किए, वहां पे इंटर्नशिप ओपन हुई तो वहां पे किया। वुमेन कमीशन में अप्रोच किए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो एनसीपीसीआर है न्यू दिल्ली में, आपके अपने स्टेट्स के जो कमीशन हैं वहां पे इंटर्नशिप कीजिए, क्योंकि वो आपको एक ग्राउंड लेवल जो होता है ना उससे वाकिफ कराएंगे। क्योंकि पढ़ाई, देखिए पढ़ाई इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल से जुड़ते हैं ना, रियलिटी हमें तभी समझ आती है। तो आप प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ में करने शुरू करिए, स्पेशली अपने फोर्थ और फिफ्थ ईयर में। जो लॉ के जो लास्ट ईयर्स होते हैं, अगर 3 साल का लॉ करें तो थर्ड ईयर में आप कोशिश करिए कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है, उसमें कोई प्रेशराइज नहीं है, बाद में चेंज कर दीजिए, आप स्विच कर दीजिए, लेकिन ये है कि जिस सब्जेक्ट्स में आपको फोर्थ फिफ्थ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसमें कोशिश करिए कि अपने आप को वो उस नीच में ना आपसे ज्यादा परफेक्ट कोई ना हो एक टाइम के बाद। उस चीज में आपको अपने लेवल को उस लेवल तक बढ़ाने की कोशिश, कोर्सेज कीजिए, बहुत सारे लीगल कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारी इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, प्लीज डू दैट। और अपने आप को जो है, एक चीज और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू योर नॉलेज, क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और अ लॉयर हमारा बाकियों से एक अलग एक हम प्रिविलेज है, क्योंकि वी नो द लॉज एक्चुअली। तो कोशिश करिए कि अपने एरिया में, जैसे आप किसी गांव से आते हैं, तो जब आप पढ़ाई करके या एग्जाम के बाद जब अपने गांव जा रहे हैं, अपने एरिया में जा रहे हैं, तो वहां पे आप एक अवेयरनेस कैंप या फिर अपना एक छोटे लेवल का एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी, जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, आप उस टॉपिक की कोशिश करिए कि प्रैक्टिकल लेवल पे अपने आप को चीजों से जोड़िए। मेरे ख्याल में वो आपको एक लाइफ टाइम बहुत हेल्प करेगी चीज। Thank you so much, ma'am, for sharing this. So that's the end of our discussion. Thank you so much, ma'am, for sharing this invaluable knowledge and experience with us. I hope my purpose to make women aware of their rights will be fulfilled today because of you. And it was a wonderful conversation with you, ma'am. थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक्स टू यू एक्चुअली।
क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, तो मेरा जितना भी वो होता है ना कि मेरा पर्पस जो है दैट इज टू मेक पीपल अवेयर कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, मे बी मेरे से भी आपने कुछ, तो वो कुछ भी जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों के बीच में, वो जिंदा रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। So also there are various helpline numbers of women protection where women can register their complaints. So I will be sharing all these helpline numbers in this caption. And also before I end this session, everyone, I would like to tell you that Meenu ma'am also runs a certificate course on the basic legal drafting. And she's starting her 5th batch from 15th June. So you can always contact her. She will be happy to solve your doubts and to help her. Thank you, everyone. Thank you, Meenu ma'am. थैंक यू।